नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेशनल हाईवे नंबर 56 वापी से धर्मपुर आंबा तक का मार्ग खस्ता हो, पूरा मार्ग बनाने की मांग के साथ धर्मपुर प्रांत अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। नानी दमन बस डिपो पर यात्रिकों को बस में जाने के लिए काफी सारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। प्रशासन द्वारा कदम उठाने की यात्रिकों द्वारा की गई मांग। नानी दमन भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट पिंपोर में फैला गंदगी का साम्राज्य, मार्ग पर ही फेंके हुए कचरे से लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है खतरा। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर तहसील के सेरीमाल फाटक से लेकर मालनपाड़ा हेलीपैड तक प्रशासन द्वारा एक ही रात में रास्ता बना दिया गया हो, जबकि नेशनल हाईवे नंबर 56 वापी से धर्मपुर आंबा तक का मार्ग पूरा खस्ता हुआ हो, बनाने की मांग के साथ धर्मपुर प्रांत अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। धर्मपुर तहसील में प्रशासन द्वारा सिर्फ शेरीमाल फाटक से मालनपाड़ा हेलीपैड तक तुरंत रास्ता बना दिया गया हो, जबकि पूरा मार्ग खस्ता हालात में हो। इस समस्या को लेकर इस क्षेत्र के लोगों द्वारा धर्मपुर प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा गया। धर्मपुर में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर आ रहे हो। अस्पताल में धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को फायदा है, जिसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है, पर प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शेरीमाल फाटक से मालनपाड़ा हेलीपैड तक का ही रास्ता त्वरित बना दिया गया हो, जो कि ये नेशनल हाईवे नंबर 56 वापी से धर्मपुर से आंबा तक का मार्ग पूरा खस्ता हो गया हो। लोगों द्वारा क्या कर नहीं वसूला जाता है, ऐसे प्रश्न भी लोगों ने खड़े करके पूरा मार्ग को बनाया जाए, ऐसी मांग के साथ प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा गया। और अगर उनकी मांग को पूर्ण नहीं किया गया तो रास्ता रोको आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। तो आवेदन पत्र देने के लिए धर्मपुर तहसील पंचायत आदिवासी अपक्ष सदस्य कल्पेश भाई पटेल, वहियाल गांव के पूर्व सरपंच दिलीप भाई, काकड़कुआ गांव के पूर्व डेप्यूटी सरपंच किरण भाई, सामाजिक अग्रणी अंकित पटेल, रतन पटेल के साथ बड़ी संख्या में समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा उपस्थित रहे थे। હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન છે, અમારો કોઈ એનો વિરોધ નથી, પરંતુ હેલીપેડથી ત્યાં સુધી રાતોરાત રસ્તો બનાવી દીધો શેરીમાળ ફાટક, તો બીજા લોકો ટેક્સ નહીં ભરે કે એટલે ફક્ત મુખ્યમંત્રી કે મંત્રી આવવાનો હોય તો જ રસ્તા બનાવવાના હતા. એટલે અમારી માંગણી છે કે જો કરવું હોય તો બધું કામ કરું ને તો આ પણ બંધ કરી દે. મુખ્યમંત્રી આવે એને ખબર પડી જોઈએ ને કે ધરમપુરની હાલત છે. ફક્ત એટલું બતાવી દે કે આ રસ્તો સારો છે, અમે જતા છે એટલું સારું છે, એટલે બધા લોકો સારા. એટલા લોકો અકસ્માતનો ભોગ બન્યા છે, દુનિયાભરનું ધૂળ ઉડે. હું કદાચ માનું સાહેબ તમે બી જ રસ્તે ગયા છે. એટલે એ અમારી માંગણી છે કે તાત્કાલિક સાહેબ આવે એટલે અમારી માંગણી. અમે એટલા માટે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા કે જે આવતીકાલે સીએમ સાહેબનો કાર્યક્રમ હોય, હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટન માટે આવી રહ્યા છે, એમાં અમારો આદિવાસી પરિવારનો કે સમાજના લોકોનો કોઈ પણ વિરોધ નથી, પણ જે અત્યારે હાલની તારીખમાં જે રસ્તાની હાલત છે એમાં કેટલાક લોકો ભોગ પણ બન્યા છે. જ્યારે મંત્રીઓ આવે છે ત્યારે રસ્તા રાતોરાત બની જતા હોય અને આમ જનતા માટે રસ્તા બનાવવાનો સમય ન હોય, એવી અમે રજૂઆત લઈને કલ્પેશભાઈ, કાકડકુવાના માજી ડેપ્યુટી સરપંચ કિરણભાઈ અને ગ્રામજનો અહીં આવ્યા છે. અમારી રજૂઆત સાંભળે અને તાત્કાલિક ધોરણે રસ્તો બને એવી અમારી અપેક્ષા છે. કલ્પેશભાઈ, દિલીપભાઈ, નાનીભાઈ માજી સરપંચ બધા જોડે આગે અને મારા ગામના આગેવાન મિત્રો જોડે નમ્રતાથી રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે કે તાત્કાલિક ધોરણે લગભગ 1-2 દિવસમાં મુખ્યમંત્રી સાહેબ આવવાના હોય, એના માટે તાત્કાલિક 1 થી 2 દિવસમાં એમણે રાતોરાત રસ્તા બનાવી દીધો છે. અને રસ્તાની હાલત ધરમપુરથી વાંસદા અને ધરમપુરથી વાપીની રસ્તાની હાલત છે, ટુ વ્હીલર પર મોટાભાગે ટુ વ્હીલર પર જવાવાળા વ્યક્તિઓ વધારે છે, એમની હાલત એવી ખરાબ છે
કે ખરા પહેલાં દયનીય કહેવાય કે ટુ વ્હીલર પર કશે જવું હોસ્પિટલ જવું હોય કે કશે કંઈ બેંકના કામકાજે જવું હોય તો બહુ તકલીફ પડે છે. એના માટે મુખ્યમંત્રી સાહેબ આવે છે. હવે શાસક પક્ષ અમારો કશું સાંભળતો નથી, એટલા માટે અમારી અહીંયા આવવાની એ જ ખાસ ઉદ્દેશ છે કે અમારો મુખ્યમંત્રી સાહેબ સુધી સંદેશો પહોંચે. આજ રોજ અમે વહિયાળ ગામના માજી સરપંચ દિલીપભાઈ, કિરણભાઈ અને આદિવાસી સમાજની હક અને અધિકારની લડાઈ લડતા તમામ યુવાનો સાથે પ્રાંત સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે જે મુખ્યમંત્રી શ્રી આવતીકાલે આવી રહ્યા આપણા હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરવા માટે ધરમપુર ખાતે. પરંતુ અમારે મુખ્યમંત્રીશ્રી અને તંત્રને એક જ વાત કરવી છે કે શું અમારા લોકો ટેક્સ નથી ભરતા? જ્યારે મંત્રીશ્રી આવવાના હોય કે મુખ્યમંત્રી આવવાના હોય ત્યારે શેરીમાળ ફાટકથી ફક્ત હેલીપેડ સુધી રાતોરાત રસ્તાઓ બનાવી દેવામાં આવે છે. અમારી તંત્રને એક જ વિનંતી અને ચેતવણી છે, તમારે કરવું હોય તો આખા રસ્તા રિપેર કરો અને ન કરવું હોય તો આજે કર્યા છે એ પણ ઉખેડી નાખો, જેથી મુખ્યમંત્રીને બી ખબર પડે કે ધરમપુર તાલુકાની હાલત શું છે. અમારી એક જ માંગણી છે અને લોક માંગણી છે, આ રસ્તાઓ જે તાત્કાલિક રિપેર થયા છે એવા જ આજે નેશનલ 56 આખો રિપેર થવો જોઈએ અને ન કરી શકે એ લોકો આવનાર દિવસોમાં લોક માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને રસ્તા રોકો આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે અને તેની તમામ જવાબદારી તંત્રને રહેશે. जोहार. नानी दमन बस डेपो पर यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है विविध समस्याओं के चलते परेशानियां, प्रशासन द्वारा सही कदम उठाने की उठी लोकावास. संघ प्रदेश दमन में नानी दमन बस स्टैंड को प्रशासन के जिम्मेवार विभाग द्वारा नया बनाने के लिए तोड़ दिया गया हो. बस डेपो को तोड़कर आज 1 साल से ऊपर होने वाला है, फिर भी यहाँ पर नया डेपो बनाने के कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को यहाँ पर आसपास में सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है, वो भी कड़ी धूप हो चाहे बारिश हो. तो इस समस्या से यात्रियों को काफ़ी सारी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है. दूसरी ओर यहाँ पर आने वाली जितनी भी एसटी बसें हैं वो बसों की संख्या भी कम हो, उसे बढ़ाया जाए, ऐसी यात्रियों की मांग है. तकलीफ आ बसनी बहू तकलीफ है भाई, कारण के पहला स्टेन्ड हतुं ने स्टेन्डमां माणसो छायडामां बेसता था. आज 2 वर्षथी स्टेन्ड नथी अने लोकोने एटलो त्रास पड़े छे के बात नहीं पूछो. तकलीफ बसों आती नहीं टाइम पर. पहला घनी बसों आती थी, हवे बधी बसों बंद कर नाखी. 1-2 बस आवे ते भी कलाक 2-3 कलाके आवे अने माणसोने बहुत त्रास थाय. दांडी मरोली ये बधी बसों हती अर्धा कलाके ये बधी बंद थई गई छे. बीजी तकलीफ बेसवा अहींया ऊभा रहेवानी तकलीफ छे. तड़कामां वरसादमां बहु तकलीफ पड़े छे. स्टूडंटो साथे थई जाय, आखी बस फूल भरेली होय, चढ़ाई नहीं. अत्यारे एक बस गई एमां अमे बे कपल अमे चढ़ी नहीं शक्या, कारण के उमरना हिसाबे कोई सेवा एवी नथी एनो कंई लई शकीए अमे भाग. 1.5 कलाक थई गई. गमती सारथी बस छे पण ए सेवामां बगड़ेली ज रही गई. वजह यही है कि जो भी बसें यहाँ पर आती है सभी में यात्रियों को बैठना तो ठीक, खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल पाती हो. कई बार यात्री तो रह भी जाते हैं. इस समस्या को लेकर अब जिम्मेवार विभाग द्वारा कदम उठाया जाए, ऐसी लोक आवाज फिलहाल तो जोरों शोरों से उठ रही है. नानी दमन भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट भीमपुर में फैला गंदगी का साम्राज्य. गंदगी के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है खतरा. संघ प्रदेश दमन में कई सारी इकाइयां आई हुई है. इन इकाइयों में हर रोज वेस्ट मटेरियल या फिर कचरा या तो वेस्ट केमिकल का निकाल किया जाता है, पर कई बार ऐसे ही कचरे को बाहर फेंक दिया जाता हो. प्रदूषण के साथ साथ अगर जहरीला केमिकल भी हो तो लोगों के स्वास्थ्य ऊपर खतरा बना रहता है. तो ऐसे ही समस्या देखी जा रही है नानी दमन भीमपुर के भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट में, जहां पर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई दे रहा है. मार्ग पर ही ऐसे ही कचरा फेंक दिया जाता हो, जिसमें कई बार अगर वेस्ट केमिकल को भी फेंक दिया जाए तो इस कचरे के साथ उत्पन्न होने वाली बदबू साथ में लोगों के स्वास्थ्य ऊपर भी खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा हो. जिम्मेवार विभाग द्वारा यहाँ पर कचरा फैलाया जा रहा हो, इनके खिलाफ सही कदम उठाया जाए वो आवश्यक बन रहा है.
के मुगरावाड़ी नाले के पास विरोध पक्ष के नेता और पालिका सभ्यों द्वारा लोगों से राशि एकत्रित कर पैदल चलने वाले मार्ग का कार्य किया गया शुरू। वलसाड़ के मुगरावाड़ी नाले में लोगों से धनराशि एकत्रित करके विरोध पक्ष के नेता गिरीश भाई देसाई और पालिका के सभ्य संजय भाई विमल भाई ने पैदल चलने वाले मार्ग को बनाने का कार्य शुरू किया। बारिश के मौसम में जब बारिश का पानी भर जाता हो, राहदारियों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पैदल चलने वाले मार्ग को बनाया जाए तो लोगों को आवाजाही में सरलता रहेगी। तो इसी उद्देश्य के साथ विरोध पक्ष के नेता गिरीश भाई देसाई और पालिका सभ्य संजय भाई विमल भाई द्वारा स्थानिक लोगों से राशि एकत्रित कर रेत, कपची, सीमेंट जैसे चीज़ों को लाकर पैदल चलने वाले मार्ग को बनाने की शुरुआत की गई। भरूच के दहेज से यांग की गड्डियों को भरकर निकली हुई ट्रक के साथ धर्मपुर के वाकी नदी के ब्रिज के पास हुई थी दुर्घटना। ट्रक चालक का हुआ था चमत्कारिक बचाव। भरूच के दहेज से ट्रक नंबर JJ16 AY 0868 में आन की गड्डियों को भरकर वापी GIDC की ओर कंपनी में जा रही ट्रक के साथ धर्मपुर 4 रास्ते पर वाकी नदी के ब्रिज के पास दुर्घटना हुई थी। ट्रक का स्टीयरिंग जाम होते ट्रक पलटी हो गई थी, जो कि इस दुर्घटना में ट्रक चालक को छोटी बड़ी चोटें आई थी और चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ था। घटना को लेकर वलसाड़ रूरल पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के चलते लगी हुई ट्रैफिक को खुला किया था। सिलवासा की देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज में मोदी 2.0 पुस्तक को लेकर हुआ था सेमिनार का आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में मोदी 2.0 बुक के बारे में सेमिनार आयोजित किया गया था। इस बुक में भाजपा की विचारधारा से प्रेरित 21 लेखकों के पीएम मोदी जी के बारे में लिखे हुए 21 चैप्टर हैं। भाजपा द्वारा इस पुस्तक को लेकर देश भर में सेमिनार आयोजित करके पीएम मोदी जी की देश प्रेम के गुणों को सराहा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप देवकीबा कॉलेज में प्रदेश भाजपा प्रमुख दीपेश भाई टंडेल की उपस्थिति में मोदी 2.0 बुक के संदर्भ में सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र भाजपा की राष्ट्रीय कारोबारी के सभ्य चित्रा वाघ उपस्थित रहे थे, जिनके द्वारा मोदी 2.0 के बारे में महत्व की बातें बताई गई। प्रदेश भाजपा प्रमुख दीपेश भाई टंडेल, प्रवक्ता माजिद लधानी, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय, लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान ने भी अपने संबोधन में मोदी 2.0 पुस्तक के बारे में जानकारी दी थी। फतेह सिंह चौहान ने कहा कि ये पुस्तक हम भी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में लाकर रखेंगे। सेमिनार में सभी महानुभावों द्वारा मोदी 2.0 बुक का विमोचन भी किया गया। दीपेश टंडेल द्वारा बताया गया कि ये बुक का एक सेमिनार दीव में भी आयोजित किया जाएगा। तो इस सेमिनार में सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान और उपाध्यक्ष अजय भाई देसाई के साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे थे। आने वाले दिनों में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश में और 4 कार्यक्रम होने वाले हैं। दीव में विद्यार्थियों के साथ एक कार्यक्रम होने वाला है और तीनों जिलों में इंटेलेक्चुअल यानी प्रबुद्ध लोगों के साथ ये कार्यक्रम होना चाहिए। कर्मठ कर्मयोगी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी किस तरह इस देश को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने का उनके जो प्रयास है और किस तरह इस देश को आगे ले जा रहे हैं, इस बारे में ये बुक में पूरा लिखा गया है। जिस तरह उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया है और जिस तरह इस देश को सुरक्षित रखते हुए विश्व गुरु बनाने के जो उनके प्रयास है वो जन जन तक जाए, युवा पीढ़ी में जाए, महिलाओं में जाए, वृद्ध लोगों को मालूम पड़े। इसलिए ये प्रयास है और उनको राष्ट्र के भाव में उनकी निष्ठाएं मालूम पड़े, राष्ट्र भावना मालूम पड़े और जिस तरह नया भारत खड़ा हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो कल्पना है वो कल्पना इस बुक में पूरी तरह बताई गई है और लोगों को जन जन तक ये पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। मैडम चित्रा वाघ जी की अध्यक्षता में, जो कि मुख्य आज के प्रसंग के वक्ता थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल भी इस सभा में मौजूद थे। मोदी जी के बारे में जैसे मैडम ने बताया कि वो प्रधान सेवक शब्द जो है उसको सही मायनों में उन्होंने चरितार्थ किया है। आज 130 करोड़ जनता के वो सेवक हैं
उन्होंने पिछले 8 साल में हमारे देश का जो मान बढ़ाया है विदेशों में, विश्व पटल पर हमारी एक जो छवि खड़ी की है, सही मायने बड़ी सराहनीय है। उन्हें सभी वर्गों को साथ लेके चलने की जो भावना बनाई है, उसी को सबको साथ लेके चलना चाहिए। आज हमारे कई बच्चों ने ये बुक के बारे में सुना है, उसमें जो 21 अध्याय है उसका पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही भारत का भविष्य है। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। हमारी मैडम भी हमारे इस कार्यक्रम से खुश हुई और हमारा ये सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई इस एरिया में पहले घूमते थे। जब प्रचारक थे तो इस एरिया को भली भांति जानते थे, क्योंकि एक स्कूटर पे घूम के वो पूरे सभी घरों में भी जाते थे। और पिछले 5 साल में भी, 5 साल पहले भी हमने एक बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया था और उसी आश्वासन के तहत हमारे टेरिटरी के ऊपर उनकी सीधी नज़र है और बहुत विकास के कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं। बहुत बड़ा विकास हुआ पिछले 5 साल। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। और मोदी एट 20 ये जो बुक का विमोचन है वो पूरे देश में हो रहा है और इसी का एक भाग है कि हमने 2 दिन पहले दमन में ये प्रोग्राम हुआ था और आज हम सिलवासा में लायंस इंग्लिश स्कूल में आए हैं। हमने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से छात्रों का रिस्पांस इस प्रोग्राम के लिए रहा। ये 21 खंडों में 21 चैप्टर्स है इस बुक में और ये 21 लोग जो है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं। ये देश की जानी मानी हस्तियां हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी हो, नंदन नीलेकणी जी हो, पीवी सिंधु जी हो, सदगुरु जी हो और ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पार्ट नहीं है, पर उन्होंने मोदी जी को देखा है। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक को इस देश के लिए कार्य करते हुए देखा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है और उनकी जो उनके प्रति जो भावना है वो इस किताब में लिखी हुई है। और उसमें फिर फॉरेन पॉलिसी हो या हमने देखा कि किस प्रकार से एक डिजिटाइजेशन का एक युग जो है वो भारत में आया है और ये सब लाने के पीछे मोदी जी की जो पॉलिसीज थी वो उन्होंने उसमें रखी हुई है। हमारे प्रधान सेवक भारत के लिए क्या योगदान कर रहे हैं ये आज के युवा वर्गों को भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि इन जो वो प्रयत्न कर रहे हैं वो हमारे बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि यही हमारा कल का भविष्य है। पार्टी के खड़की गांव में घर के छत से पुलिस ने छापेमारी के दौरान और 2 मोपेडों में से जब्त किया शराब का जत्था। पार्टी तहसील के खड़की गांव के निशाल फलिया में रहते मनोज ठाकुर भाई पटेल ने शराब का जत्था रखा होने की जानकारी पार्टी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने तुरंत छापेमारी करते ही घर के छत पर से शराब की बोतलें प्राप्त की थी। साथ ही पार्क की गई 2 मोपेड नंबर JJ15 DK 2382 और JJ15 DQ 2150 से शराब की बोतलों का जत्था मिलते पुलिस ने 318 शराब की बोतलों की कीमत 27,000 और मोपेड के साथ पुलिस ने 92,000 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर पकड़े गए मनोज पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ करते आरोपी ने उनका भाई आशीष पटेल शराब लाया होने का बताते ही पुलिस ने आशीष पटेल को वांटेड घोषित कर आगे की जांच शुरू की है। पार्टी तहसील के तिगरा की एक होटल में वेटर ने गले में फंदा लगाकर डीजे रूम में की खुदकुशी। पार्टी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। मूल वेस्ट बंगाल के और फिलहाल तिगरा गांव में रजवाड़ी होटल में पिछले 10 महीनों से वेटर के तौर पर फर्ज बजाती और होटल के स्टाफ के रूम में रहते माखन दास सपना दास बंगाली उम्र वर्ष 29 साल ने होटल के डीजे रूम में पहुंचकर सीलिंग फैन के साथ गमछा बांधकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बारे में होटल के मालिक जीतू भाई को जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी थी। होटल मैनेजर राजेश राव द्वारा पार्टी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पार्टी पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए उरवाड़ PSC में भेजा गया था, जहां पर पीएम करवाकर आगे की कार्यवाही शुरू की है, जो कि वेस्ट बंगाल के माखनदास ने किस वजह से होटल के डीजे रूम में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली उसके बारे में रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेशनल हाईवे नंबर 56 वापी से धर्मपुर आंबा तक का मार्ग खस्ता हो, पूरा मार्ग बनाने की मांग के साथ धर्मपुर प्रांत अधिकारी को दिया गया ज्ञापन।
नानी दमन बस डिपो पर यात्रिकों को बस में जाने के लिए काफी सारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। प्रशासन द्वारा कदम उठाने की यात्रिकों द्वारा की गई मांग। नानी दमन भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट पिंपोर में फैला गंदगी का साम्राज्य। मार्ग पर ही फेंके हुए कचरे से लोगों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है खतरा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।